ہے تم نے کسی کا دل دکھایا، لگتا ہے تم نے کسی کا دل دکھایا ہے۔ تیرے ماں باپ ہیں؟ کہا کہ حضرت میرے ماں باپ تو ہیں، لیکن ماں باپ کو دیکھے ہوئے 14 سال ہو گئے، اب وہ کس حال میں ہے نہیں ہے پتہ نہیں۔ تو بزرگ نے کہا پھر یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ یہ خانے کعبہ میں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ اٹھ جا، ان ماں باپ کی بارگاہ میں جا جن کو روٹھایا ہے، ان کی بارگاہ میں جا، ان سے معافی مانگ، شاید وہ راضی ہو جائے تو اللہ تیرے دل کے تالے کو کھول دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی، درگزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ یہ نوجوان اٹھا، ٹکٹ کا انتظام کیا، ہندوستان آیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یوں سمجھ لے پٹنہ اترا، وہاں سے ٹرین پکڑ کر اپنے گھر آیا تو دیکھا کہ یہ بستی ہے میری، لیکن میرا گھر کہاں ہے؟ پختہ کا مکان بن گیا، کچھ لوگوں نے بلڈنگیں بنا لی، 14 سال کا عرصہ گزرا تھا، پتہ نہیں لگ رہا تھا میری جھوپڑی کہاں ہے۔ میری جھوپڑی تھی، پتہ نہیں لگ رہا جھوپڑی کس جگہ ہے۔ قربان جاؤ، ایک بوڑھے میاں بستی سے باہر گھاس کاٹ رہے تھے، یہ نوجوان سوچا اسی بوڑھے میاں سے پوچھ لیتے ہیں میرا گھر کس جگہ، میرا ابا کا گھر کس جگہ ہے، بتا دے گا۔ تو بوڑھے میاں سے بولا کہ چچا، اپنا باپ کا نام لے کر بولا کہ وہ عبداللہ صاحب کا گھر کس جگہ ہے۔ تو اس بوڑھے میاں نے نیچے سے اوپر تک نوجوان کو دیکھا، بولا کہ عبداللہ میاں وہ بیچارے اب اس دنیا میں کہاں رہے، وہ بیچارے اب اس دنیا میں کہاں رہے۔ اس کا تو یقین بیٹا تھا، وہ دغا کر کے بیٹا چلا گیا، بیٹے کے غم میں بیچارے روتے روتے اس دنیا سے چلا گیا، 4 سال ہو گئے مرے ہوئے۔ یہ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو آ گیا۔ نوجوان نے کہا اس کی بیوی کا کیا بنا؟ بولا اس کی بیوی بیچاری جب بیوہ ہو گئی دوسرے کے گھر میں کام کر کے کھاتی تھی، اب تو سننے میں آیا کہ فالج بھی مار دیا ہے، اب کچھ دنوں سے آنکھوں کی اندھی ہو گئی ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے، محلے میں کسی کو اگر کچھ ترس رحم آتا ہے تو کھانا پہنچا دیتا ہے، بس یقین دعا کرتی ہے وہ کہ اللہ اس وقت تک میری موت نہ ہو جب تک میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں۔ پتہ نہیں وہ کون بدنصیب بیٹا ہے جو اپنی ماں کو چھوڑے ہوئے سعودی جا کر کے بس گیا ہے۔ یہ لڑکا زارو قطار رونے لگا۔ اللہ اکبر کبیر، بزرگ کہتے بیٹا کہ تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ یہ نوجوان کہتا ہے کہ بابا میں اسی بدنصیب، میں اسی بڑھیا، اسی عبداللہ کا بدنصیب بیٹا ہوں۔ کہا کہ جا دوڑو، وہ بیچ میں تیری جھوپڑی پڑی ہے، جا تیری ماں زندہ ہے، شاید ماں راضی ہو جائے تو تیرا آخرت سنور جائے گا۔ دبے قدموں سے اپنے آنگن گیا تو قدموں کی آہٹ سے ماں نے آواز دی، کون ہے؟ کون ہے؟ تو لرزتی آواز میں بیٹے نے کہا کہ ماں تیرا گنہگار بیٹا آیا۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا مجھے تو اٹھنے کی طاقت نہیں بدن میں، بیٹا آنکھوں میں تو وہ روشنی نہیں رہی جو تجھے دیکھ پاؤں، ذرا میرے قریب آ جاؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ تاکہ میرے کلیجے کو ٹھنڈک مل جائے۔ یہ ہوتی ہے ماں کی ذات، یہ ہوتی ہے باپ کی ذات۔ میرے نوجوانوں، تم کیا جانو ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کس طریقے سے اپنی اولاد کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، کتنی محبت سے اپنی اولاد کو وہ رکھتے ہیں، تم کیا جانو۔ تمہیں احساس اس وقت ہوگا جب تم خود صاحب اولاد بنو، جب تمہاری اولاد ہوں گی تب تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بیٹا چیت بیساکھ کے دھوپ میں چھپر میں چھونی کر رہا تھا، باپ دیکھا، باپ بولا ہے بیٹا اترو، بہت دھوپ ہے بیٹا، دھوپ ہے، شام کے ٹائم میں کرنا۔ بیٹا نہیں مانا، بولا نہیں کر لیں گے ہم۔ باپ کو برداشت نہیں ہوا، بولا یہ اتر ہی نہیں رہا ہے۔ تو کیا کام کیا، اپنے گود میں اس کا پوتا تھا، پوتا کو لیا دھوپ میں سلا دیا، اب وہ چھپر سے بول رہا، ارے کی کرنا، اٹھاؤ جلدی، اٹھاؤ۔ بولے بیٹا تم کو کتنی محبت ہو رہی ہے، تم کتنا بے چین ہو گئے، ہم نہیں اٹھائیں گے۔ وہ دوڑ کر آیا، چھپر سے اترا، اور وہ بچہ جو اس کا بیٹا سویا ہوا تھا اس کو سینے سے لگا کر چھاؤں میں لے کر گیا۔ تب باپ بولا کہ بیٹا جس طریقے سے تمہیں اتنی سے محبت ہے نا، اس سے زیادہ ہم کو تمہاری ذات سے محبت ہے، جس طریقے سے تمہارا بیٹا ہے اسی طریقے سے تم میرا بیٹا ہو۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی عظیم ہستی کو پہچانو، اس کی قدر کرو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے کہ ہلاک ہو گیا وہ، برباد ہو گیا وہ۔ اللہ کے نبی متفقون علیہ حدیث ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ ہلاک ہو گیا جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اس کی خدمت کر کے جنت میں جگہ نہ بنا پایا، وہ ہلاک ہو گیا۔
हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे। खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, काश मैं ऐशा की नमाज, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं ऐशा की फर्ज नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर सूरह फातिहा छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। ये बताना मकसूद था, हम गुनहगारों को बताना मकसूद था कि माँ का मकाम क्या है। सुनो, मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, सहाबा कराम तशरीफ फरमा है, कुर्बान जाओ। एक दरवाजा है मस्जिद नबी में, बाबू सलाम, दरवाजा है बाबू सलाम, उसी दरवाजा से एक औरत दाखिल हुई मस्जिद के अंदर में। एक औरत मस्जिद के अंदर में दाखिल हुई तो अल्लाह के नबी उस औरत को देखे और देखने के साथ ही खड़े हो गए, इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। वो औरत करीब आई, अल्लाह के नबी ने सलाम किया और अपने कंधे से काली कमली को, चादर को उतारे जमीन पर बिछा दिया। आपने फरमाया अम्मा बैठ जाओ। तो अल्लाह के नबी जब खड़े हुए, तमाम सहाबा खड़े हो गए कि भाई कौन औरत है ये कौन खुशनसीब औरत है जिसके इस्तकबाल के लिए अल्लाह के नबी खड़े हो गए। सहाबा खड़े हो गए तो किसी में पूछने की हिम्मत नहीं थी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ये कौन खुशनसीब औरत है जिसके इस्तकबाल के लिए आप खड़े हो गए, अपने कंधे से काली कमली को जमीन पर बिछा दिए, जरा जानो तो सही। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए उमर, ये औरत कोई और नहीं, मेरी माँ दाई हलीमा है। सुभान अल्लाह, बोले माशाअल्लाह, ये मेरी माँ दाई हलीमा है। अपनी माँ नहीं थी, सगी माँ नहीं है, सगी माँ नहीं है, रजाई माँ है, दूध पिलाई थी। हजरत हलीमा ने सिर्फ दूध पिलाई थी। अल्लाह के नबी को बताना मकसूद था कि माँ का मकाम बड़ा आला है, माँ का बड़ा मकाम बड़ा ऊंचा है, बाप का मकाम बड़ा ऊंचा है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है, जब तक दरवाजा खुलेगा नहीं जन्नत में जा नहीं पाओगे। नौजवानों, तुम आज अपने बाप से ऊंची आवाज में बात कर लेते हो। बाप को ऊंची आवाज में बात करना, अल्लाह का कुरान तो उफ तक कहने का मना फरमाया, उफ़्फियों वाला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह को उफ तक भी पसंद नहीं है। बाप की बारगाह में ऊंची आवाज से बात करना भी अल्लाह को पसंद नहीं है। माँ की बारगाह में अल्लाह को ऊंची आवाज से औलाद के लिए बात करना भी गवारा नहीं है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, अगर बेअदबी हो गई है तो तौबा करो, अपने माँ बाप से गलती मान लेना, माँ बाप से माफी मांग लेना। अगर माँ बाप ने माफ कर दिया, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह भी माफ कर देगा। सुनो, और एक हदीस मैं आपको सुना दूं, बड़ी प्यारी हदीस है। एक सहाबी है अलकुमा नाम, क्या नाम है बोलिए? अलकुमा, बोलिए। आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुर रसूल, पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। जबान अटक जा रही है, जबान पे कलमा नहीं आ रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं पढ़ने का, पढ़ नहीं पा रहे हैं। बीवी घबराई, अल्लाह के नबी की बारगाह में दौड़ती भी गई, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ले चले, मेरा शौहर अलकुमा आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाहता है, या रसूल अल्लाह कलमा नहीं पढ़ पाता। तो अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, पूछे भाई इसकी माँ है, अलकुमा की माँ है? कहा कि रसूल माँ है। बोला उसकी माँ को बुलाओ। माँ आई, वो बुढ़िया आई। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसा है अलकुमा? कहा कि या रसूलल्लाह, वो तो 5 वक्त की नमाज आपके पीछे पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, रमजान का महीने का रोजा रखता है। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ तेरे साथ तेरे बेटे का कैसा मामला है? कहा कि या रसूलल्लाह, मैं उससे नाराज हूँ, उन्होंने मेरे दिल को ठेस पहुंचाया है।
میرے سامنے اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے, ہماری کوئی اہمیت نہیں لگاتا, میرے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے. تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے ضعیفہ معاف کر دے, تیرے بیٹے کا آخری وقت ہے, معاف کر دے. اگر تو معاف کر دے گی اس کے زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا, آخرت کے عذاب سے تیرا بیٹا بچ جائے گا. ماں نے, جانتے ہو کون ہے یہ؟ صحابی ہیں. کوئی وقت کا کتب ہو سکتا ہے, ابدال ہو سکتا ہے, غوث ہو سکتا ہے, متقی مجتہد مفکر ہو سکتا ہے. اگر نہیں ہو سکتا ہے تو کسی صحابی کا تلوہ کا دھول نہیں ہو سکتا. صحابی کا مقام بڑا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں, میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں. صحابی ہے. بڑھیا معاف کر دے, تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے. کہا یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں. تو اللہ کے نبی فرماتے بلال لکڑیاں جمع کرو, لکڑیاں جمع کرو, اس میں آگ لگاؤ اور اس کے بیٹے علقمہ کو اس آگ میں ڈال دو. تو ماں ہوتی ہے نا, ماں تڑپ گئی, یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آپ جلائیں گے آگ میں؟ کہا کہ بڑھیا اگر تو معاف نہیں کرے گی تیرا بیٹا آخرت کے عذاب میں گرفتار ہو, اس آگ میں جلے گا. اگر اس آگ میں نہیں جلا تو اس آگ میں جلے گا. میرے نوجوانوں, آج تم دنیا میں ناجائز رشتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہو, فون سے نہ جانے کون سے گناہ کر بیٹھے ہو. میرے بچوں ان کے چکر میں نہ پڑو, جائز طریقے سے اپنی بیوی سے بات کرو, جائز طریقے سے. اور ایک بات یاد رکھنا, اس لڑکی سے ہرگز بات نہ کرنا. ابھی تو بات چیت چلی ہے, ابھی تو صرف گفتگو ہوئی ہے, ابھی نکاح اس لڑکی سے تمہارا نہیں ہوا ہے, اس لڑکی سے بات کرنا تمہارے لیے حرام ہے. لیکن یہاں ہوتا کیا ہے, بہت ساری کمیاں ہمارے سماج کے اندر میں. ابھی بات چیت چلی ہے کہ ہاں ٹھیک جی تور بیہا اگر پھڑاس ہے تو بس خالی بات چیت جہاں چل رہے, بس فون نمبر وہاں سے یہاں بھی گئی, یہاں کا فون نمبر وہاں چلو گلی, بس اب بہرا ہاتھ گھومو ہمارا سے چلا پورنیہ. ابھی کوئی رشتہ ہے, ابھی کوئی رشتہ ہے, ابھی تو غیر محرم ہے, وہ غیر محرم ہے, وہ غیر محرم ہے, وہ ہماری کیا کہتے ہیں ابھی بیوی نہیں ہے. بیوی اس وقت ہوگی جب ہم نکاح پڑھ لیں گے, پھر بیوی کو لے کے چاہے پورنیہ گھومو, پٹنہ گھومو, بمبئی گھومو, کرکٹ کھیلو, دوڑو, جو کرنا کرو. منع تھوڑے. بیوی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی حسین زندگی ہے, بڑی حسین. اللہ کے نبی ایک سفر پہ آ رہے تھے, تو جب مدینہ پہنچنے والے تھے, مدینہ سے پہلے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحابیوں سے کہ تم لوگ جاؤ. اما عائشہ ساتھ میں تھی, تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ سبحان اللہ, واللہ ماشاء اللہ. عورتوں کا مقام سمجھو, عورتوں کا مقام کیا ہے. وہ لوگ, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. تم میں سب سے اچھا وہ ہے, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. اور قربان جاؤ, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے عائشہ دوڑ لگاؤ گی ہم سے؟ اما عائشہ کہتی یا رسول اللہ آپ جیت نہیں پائیے گا. بولا دوڑو, اور دوڑ لگائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے, اما عائشہ بھی ساتھ میں دوڑی. اما عائشہ جیت گئی, آگے نکل گئی. پھر کچھ مہینوں کے بعد پھر ایک سفر سے آ رہے تھے, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے عائشہ یاد ہے اس بار تم جیت گئی تھی؟ کہا یا رسول اللہ جیت گئی تھی. کہا اب دوڑو گی؟ بولا دوڑیں گے. بولا چلو دوڑو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ میں آگے نکل گئے. اما عائشہ کا بدن تھوڑا بھاری ہو گیا تھا, دوڑ نہیں پائی. اللہ کے نبی آگے نکل گئے, تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے عائشہ یہ اس جیت کا یہ بدلہ ہے. قربان جاؤ, یہ نبی نے زندگی بتا دی ہے. نبی کی سیرت یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ الحمدللہ اگر اللہ توفیق دے تو ان کو گھماؤ پھراؤ, ان کو ٹہلاؤ, ان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ. اور یہ بھی نبی کی سنت ہے. قربان جاؤ, اپنے ہاتھوں سے شوہر اپنے ہاتھوں سے بیوی کو اگر لقمہ کھلا دے تو یہ بھی نبی کی سنت. کتنے لوگ کھلاتے ہیں یہاں پر؟ اے بابا اے فرگنگ میں کھانا کھلے, کتنے لوگ نبی کی سنت کو ادا کرتے ہو. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری ایک مردہ سنت کو زندہ کیا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اما عائشہ پانی پیتی, لکڑی کا پیالہ تھا, لکڑی کا پیالہ تھا پانی پینے والا. وہ اللہ کے اما عائشہ پانی پیتی تھی نا, تو لکڑی کا پیالہ پانی پی کر کے پیالہ رکھتی تھی نا, تو اللہ کے نبی اس پیالہ کو اٹھاتے تھے, وہیں ہونٹ لگا کر پانی پیتے تھے جہاں پر اما عائشہ ہونٹ لگاتی تھی. سبحان اللہ. وہیں اسی جگہ پہ ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے. آج تو عالم یہ ہے اگر بیوی پانی پی لی بدنام ہے تو شوہر کہے گا کہ باپ رے تو منہ کتنا ماٹی جو گئے للی بدنہرہ ماٹی کے لیے. بولا بات صحیح جی غلط جی. بولا
उसको हकीर तो ना जानो। अल्लाह अकबर कबीरा। बीवी का बड़ा मकाम है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। सोने चांदी से घर नहीं चलता है, रुपयों पैसे से सिर्फ घर नहीं चलता है, अच्छे अखलाक से घर चलता है, अच्छे अखलाक से घर चलता है। बीवी भी तो चाहती है कि कोई हमसे मोहब्बत करने वाला हो। ये मेरा शौहर है, ये हमसे मीठी बात करे, ये हमसे अच्छी बात करे, मेरी दिलजुई करे। और कुर्बान जाओ, कभी उनकी तारीफ तो कर दिया करो, कभी उनकी तारीफ तो कर दिया करो। ऐसा नहीं कि तरकारी में नमक हो गया बस निकाल के लाठी छुतल के उनको गाली देना, उनकी माँ को गाली देना, उनका बाप को गाली देना। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, एक मुसलमान को ये ज़िब नहीं देता है कि किसी को गाली दे। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि कुर्ब क़यामत की ये निशानी है कि एक बेटा अपनी माँ को गाली देगा। ए बेटा, ए कहाँ जा रहा? चल बैठो, चलो, जब तक बयान होगा कोई आएगा जाएगा ना, कोई आएगा जाएगा ना, जब तक बयान होगा। लगा लग लो जी। एक जलसे में तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो, बैठ गई। 10 मिनट के फिर खड़ा हुआ, मैंने क्या हुआ? बोले वो बहुत जोरों से लगला से। बोले बैठ थोड़ी देर बैठ जाओ। मेरी तकरीर खत्म हो गई, बैठा हुआ है, तो हम उसको इशारा किए, जो बोली आप नहीं जो। तो हमने कहा काहे नहीं जाओगे? तो बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, बीवी के साथ बेहतर सलूक करो। और गौर करने का मकाम यह है। अब देखिएगा, एक मिसाल लीजिए। एक नौकर आप घर में रखे हैं, एक नौकर आप घर में रखे, मिसाल के तौर पर वो नौकर आपके बदन का मैला कपड़ा धोता है, वो नौकर आपके बदन का मैला कपड़ा धोता है, आपके लिए खाने का इंतजाम करता है। और कुर्बान जाओ, वो नौकर आप बाहर कमाने चले जाते हैं, आपके घर की निगहबानी करता है। और कुर्बान जाओ, वो नौकर जब आप बाहर से आते हैं आपके लिए खाने का इंतजाम करता है, दस्तरखान बिछाता है, खाना निकाल के देता है, पानी ला करके देता है। जब आप थक हार कर सोते हैं वो आपका बदन भी दबा कर देता है। अगर उससे छोटी मोटी गलती हो जाए तो आप माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? तो सोचिए तो सही, वो मेरी शरीक हयात, वो मेरी प्यारी बीवी, अल्लाह अकबर कबीरा, जो हमारे बदन की मैला कपड़ा को धोती है, जो मेरे बच्चों की परवरिश करती है, मेरे घर में झाड़ू लगाती है। अब क्या समझे? घर का काम आप खेत में काम कर लेते हैं, बाहर में दुकान में रह जाते हैं। आप क्या समझते हैं हम बहुत बार बहादुर हो गए? घर में कितना काम है समझिए, कभी किए घर का काम? घर में कितना काम है, एक दिन कर लीजिएगा पसीना निकल जाएगा। घर में कितना काम है, अगर खाली आंगन में झाड़ू लगा लिए सीधा खड़ा नहीं हो पाइएगा। औरतें कितनी कुर्बानी करती है, कभी आपने गौर किया है? अल्लाह, हम तो चले जाते हैं कमा के ला करके दे दिए और आराम से मुंह हाथ धो करके बिस्तर पे लेट गए। अब औरतें ही हैं जो घर के निजाम को चलाती है। मेरी बीवी एक मरतबा बिहार आ गई, अब वो कोयला वाला चूल्हा में खाना बनता था। अब एक लड़का, वो बड़ा वाला लड़का रह गया, तो सोचे कि हम लोग खाना खा लेंगे, चाहे होटल से मंगा लेंगे। तो खाने का टाइम हो गया, तो बेटा बोला अब्बा क्या करें, खाना होटल से लाएं या खाना बनेगा? हम बोले अभी बना लेते बेटा, 10 मिनट आधा घंटा लगे, खाना बना लेंगे। बोले बनाइए। अब कोयला डाले, जैसे जैसे मेरी बीवी करती थी किए। अब चूल्हा जला रहे हैं तो वो जल ही नहीं रहा, जला लेकिन धुआं ही धुआं। मेरी दाढ़ी से धुआं नहीं, फूकते फूकते दाढ़ी से धुआं निकल गया। 20 मिनट हो गया चूल्हा नहीं जला। ये बस की बात नहीं है, पैसा लो होटल से खाना लेके आओ और कुर्बान जाओ, चिलचिलाती धूम में आंगन में बैठकर वो खाना बनाती है। और कितनी साबेरा है हमारी माँ बहनें, बड़ी तादाद में आई है, कितनी साबेरा है वो। भूख लगी है, खाने में हाथ नहीं लगाती है, वो उस वक्त तक हाथ नहीं लगाती है जब तक उसका शौहर खाना खा नहीं लेता है। बोले बात सही है कि नहीं? बताइए, ऐसी बीवी कहाँ मिलेगी? ऐसी बीवी कहाँ मिलेगी? हमारे बच्चों की परवरिश करती है, हम बाहर चले जाते, मेरे घर की निगहबानी करती है। हम उसको क्या दे देते हैं भाई? हम क्या देते हैं? आप उसको क्या खिलाते हैं? रसगुल्ला लाकर खिलाते हैं, बारातगाह से, कस्बा से उसको घी मलाई लाकर खिलाते हैं, कुछ नहीं करते। अरे कम से कम मीठी बोल तो बोल लो, अच्छी बात तो कर लो, गुफ्तगू तो कर लो, उसकी तारीफ तो कर लो कि नहीं खुद आग में तही छा के घर चले। देखिए, तारीफ करना बहुत जरूरी है। देखिए, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, वो घर में सुकून ही सुकून होगा जो ये वजीफा पढ़ेगा। ये वजीफा कर लिए, 2 वजीफा करना है। घर में सुकून ही सुकून, कभी लड़ाई नहीं होगी, कोई झमेला नहीं, फिर बीवी आपसे बहुत मोहब्बत करेगी। पहली बात तो यह है कि थोड़ी तारीफ कर देना बीवी का। फातिमा की माँ क्या खाना बनाती है तू,
और उनको खाना दे, हमारा होटलों में कहियो ने खिलान बस। फिर देखिए चाहो चाहो बनागा बीतिया। उनके माँ बाप की गीबत नहीं करनी, उनके माँ बाप को गाली नहीं देना है, बहुत बड़ा गुनाह है मेरे नौजवानों, बहुत बड़ा गुनाह है। बीवी से मोहब्बत करना अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। ऐ मेरी माँ बहनों के कद्र करो, मेरे माँ बहनों की कद्र करो, अपनी बीवी को भी इज्जत दो, अपनी बीवी को भी इज्जत दो। सोचो तो सही वो कितनी कुर्बानी दी है अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने पड़ोसी को, अपने मोहल्ले को, अपने रिश्ते को छोड़कर सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए वो आ गई है। अगर आपकी भी मोहब्बत अगर उसको ना मिले तो उनको कितनी तकलीफ होगी। तो इंशाल्लाह कितने लोग अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। इंशाल्लाह कितने लोग? ये बच्चा भी हाथ उठा दिए। हाँ, तो आज नहीं कल ये भी तो जवान होगा, कल ये भी तो जवान होगा इंशाअल्लाह। कल ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक क्या कहते हैं कि निकाह करेगा। मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, जब भी निकाह करना नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, इंशाअल्लाह जो औलाद पैदा होगी वो औलाद नेक पैदा होगी, नेक और साले पैदा होगी, ना फरमान नहीं होगी, फरमा बरदार पैदा होगी। आज मैं कहना चाहता हूँ, मैंने जो आयत मुक़द्दसा का तिलावत किया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। कुर्बान जाओ, ये सूरह बनी इसराइल है, रुकू नंबर 2 है। क्या रब्बे क़दीर इरशाद फरमाता है माँ बाप के ऊपर कि मेरे लोगों, मेरे बंदो, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और सुनो, जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, इन्हें झिड़कना नहीं, इन्हें उफ तक ना कहना, उफ़्फ़ियूं वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा, और इनके लिए शफ़क़त का बाजू बिछा देना और मेरी बारगाह में दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। हे अल्लाह, मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। मेरे नौजवानों, आज तो आलम यह है कि बेटा बाप से अलग हो गया है, बेटा बाप से अलग हो गया है। कुर्बान जाओ, बेटा बारा ईदगाह से मीट लेकर आया है, खस्सी का गोश्त लेकर आया है, बेटा खस्सी का गोश्त भात खा रहा है, और उसका बाप अल्लाह अकबर कबीरा सब्जी लेकर बैठा है, सब्जी खा रहा है। बेटे को इतना तक क्या कहता नहीं हो रहा है, चलो मेरे घर में गोश्त बना है, आज अपने बाप के हिस्से में बाप को थोड़ा सा मीट दे दे, माँ को थोड़ा सा गोश्त दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों, तुम कहाँ जाओ रे, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे मजहब ने माँ बाप का क्या मकाम दिया है, अल्लाह ने माँ बाप का क्या मकाम दिया है। इसलिए नौजवानों सुनो, अगर तुम जन्नत में घर बनाना चाहते हो, आखिरत में अच्छा मकाम बनाना चाहते हो, जन्नत के अंदर में दाखिल होना चाहते हो, तो अपने रूठे हुए माँ बाप को राजी कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। इंशाअल्लाह खिदमत करेंगे माँ बाप के भाई, इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे। और नौजवानों सुनो, जितनी नमाजें हैं पढ़नी है पढ़ लो, तहज्जुद पढ़ लो, इशराक पढ़ लो, चाश्त पढ़ लो, अवाबिन पढ़ लो, सलात तस्बीह की नमाज पढ़ लो, हर साल खाने काबा का हज करो, रोजाना ये खत्म कुरान शरीफ करते रहो, ये पूरा 12 महीना तुम रोजा रखो। लेकिन कसम खुदा की, अगर माँ बाप नाराज है, ये सारी नेकियां, ये सारे अमल अल्लाह उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक रूठे हुए माँ बाप को तुम मना नहीं लो। ये हर साल का हज, रोजाना कुरान की तिलावत, ये सदका खैरात, ये ज़कात, ये रमजान के महीने के रोजे उस वक्त तक कबूल नहीं है जब तक रूठे हुए माँ बाप को मना नहीं लोगे, जब तक वो राजी नहीं होगा, मेरा रब राजी नहीं होगा। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह राजी, अल्लाह माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। तो इंशाअल्लाह कितने लोग, नौजवानों मेरे बच्चों, अगर कोई भूल चूक हो गई है, कोई गलती बाप की बारगाह में बेअदबी हो गई है, माँ की बारगाह में अगर बेअदबी हो गई है, इस जलसे से जाना, माँ से माफी मांग लेना, बाप से माफी मांग लेना कि अब्बा हमसे गलती हो गई है, अब मुझे माफ कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ से कहना, माँ मुझसे भूल हो गई है, मुझसे गलती हो गई है, अब मुझे माफ कर दे। इंशाअल्लाह अगर माँ ने माफ कर दिया, बाप ने माफ कर दिया, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह भी माफ कर देगा। इंशाअल्लाह माफी मांगोगे। इसमें शर्म ना करना मेरे बच्चों, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। सुनो, एक नौजवान था शादी किया, एक नौजवान शादी किया इसी हिंदुस्तान का, और मौलाना सलमान साहब मंसूरपुरी मदरसा दारुल उलूम देवबंद,
अभी उड़ीसा में एक जलसा था, क्या वाकया सुनाया मौलाना मंसूर सलमान साहब दामद बरकातुहू ने, अल्लाह अकबर कबीरा। किसी हिंदुस्तान का एक नौजवान शादी किया और शादी करके जब आया, बाप का इकलौता बेटा था, बाप का इकलौती औलाद, बाप का एक ही बेटा, ना बेटी और ना कोई बेटा, बस एक ही बेटा था। बड़ी हसरत से माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया। बेटे की शादी हो गई और जब शादी करके अपनी बीवी को लाया तो ये लड़का रहता था बाहर में, ये लड़का बाहर रहता था सऊदी। तो बीवी बोली कि आप तो बाहर चले जाएंगे तो हम अकेले यहाँ क्या करेंगे? तो उस लड़के ने कहा कि तुम रहना माँ बाप के साथ। बोला ना, नहीं होगा, आप हमसे शादी किए हैं, आप सऊदी जाएंगे, आपके साथ मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। ये लड़का बड़ा आशिक था, बीवी की खूबसूरती पे बड़ा दीवाना था, बीवी की बातों को टाल ना सका। बीवी बोला नहीं ठीक है जी, तुम बिना हम रोन मनने लगता हूँ, ठीक है जी चलो। बहुत सारे नौजवान, अभी तो आलम यह हो गया है, एक जमाना वो था कि जब बाप बेटा को अगर शादी की बात अगर छिड़ जाए बेटा के सामने में तो वो लड़का शर्म से पानी पानी हो जाता था, भाग जाता था, शर्म से पानी पानी हो जाता था। और अभी का नौजवान क्या है? अभी का नौजवान देखिए मोबाइल में फोटो लेकर घूम रहा मोगी का। अब मैं से बोली मियां वो आ कह दिया मैं भी आ कर वो नहीं तो समझी दिया निकला लगा मैं बोलो बात सही गलत है बोलो। ऐसे ही एक नौजवान, अजय देख मैं आपको जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा, इसलिए मैं थोड़ा मौजू थोड़ा सा कहते आपको बोल दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हर लड़का को खूबसूरत लड़की चाहिए, बदसूरत काली लड़की किसी को नहीं चाहिए, सबको गोरी लड़की चाहिए। लड़का चाहे खपड़ी का तल्ली क्यों ना हो, लेकिन लड़की उसको ब्यूटीफुल चाहिए। एक लड़का ऐसे ही छांट रहा था, नहीं कर वो ये लड़की छोड़ पसंद नहीं, इनका नाक बहुत बोरो अच्छा छाट हेकरा बोले नहीं दांत निकल लो अच्छा ठीक हेटा बोले बहुत कारो करते करते उसकी उम्र 40 साल हो गई। तो उसका बहने बोला कर तोर बिहार नहीं है तो बोला कहना बोले ते बुढ़वा भाग रहा, अब कौन बेटी देगा? बोले नहीं भूल भेले बोने देखो अब तेजे देखवानी हम करी लू, अब देखो लड़की ने करी लू। इसका बहने बोला अच्छा ठीक है तुमको ब्याह करवाते। देखो काली लड़की देखा इसका बहने, अब देख के बातचीत चला दिया। और ठीक बारात गई, अब बारात गई निकाह करके बीवी को लेके आया, बेचारा अभी तक बीवी को देखा नहीं। अब रात में कमरे में जो गया बीवी का, तो बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की ना, ये बेहोश हो गया। तो लड़की समझ के सर को बीमारी की, तो बेचारी गिलास का पानी उठाई मुंह पे छीटा मारी कि उठा मैं कुछ पूछा तो पहले बेहोश भाग गया। तो आंख खोला लड़का, बोला जल्दी पूछना जल्दी पूछना, तो फिर बेहोश भाग बोला। तो बीवी पूछी कि हम यहाँ नई नवेली आए हैं, किससे पर्दा करना है किससे नहीं पर्दा करना, अब हमको बता दीजिए, आप मेरा शौहर है। तो नौजवान बोला कि सुना ते कौन पर्दा करे या ना करे, लेकिन हमरा से जरूर पर्दा करिए। फिर भी हो सके गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियां नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियां नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही। माशाअल्लाह देख लीजिए फटलो नहीं क्या कि जलसे में असल फटा हुआ नोट चल जाता है। अच्छा जलसे वाले भी चालाक, हम चंदा करते हैं कितने लोग फटा हुआ नोट दे देता है, और जलसा वाला जब नजराना देता है तो चुनी चुनी फटा नोट मुड़ भी एक दीजिए।
ایک جلسہ میں ایک نوجوان جلسہ سنا، جلسہ سن کے چوک پہ بیٹھا صبح اور لوگوں سے بولنے لگا بھیا چلا دلی. تو لوگوں نے کی چلا لگا، بولے بھیا چلی گئی. تو لوگوں نے پوچھا کیا چلا اللہ کا بندہ، بولو کیا چلا ہے. بولا کہ رات میں جلسہ تھا نا، یہ کو نمری تھا میرے پاس، پورے 12 عیدگاہ مجگواں قصبہ لے کے 1 مہینہ سے گھومے، وہ نمری نہیں چلا. وہ جلسہ تھا، وہ کلکتہ والا نعت پڑھ رہا تھا، 10 ٹکا اس کو انعام دے دیے، 90 ٹکا لے لیے، نمری وہی چلا دیے. اس بچے نے 20 روپے دیے مجھے ماشاءاللہ، لیکن یہ دیکھیے 50 ٹکا اور آ گیا. واہ بیٹا واہ، الحمدللہ. لیکن یہ پیسہ الحمدللہ میں نہیں رکھوں گا، میں سمجھ رہا ہوں اس لیے کہ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات الحمدللہ، یہ بیٹیوں کا جو مدرسہ چل رہا ہے، بچوں کا مدرسہ چل رہا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ پیسے تو میرے ہیں، میں اپنے ماں باپ کے نام پر الحمدللہ اس پیسے کو میں یہاں پر رکھتا ہوں کہ شاید اللہ اسی پیسے کے طفیل صدقے میں میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے انشاءاللہ. یہ کئی روپے ہو گئے میں رکھنا چاہتا ہوں. ابھی کوئی مت دیجیے گا بیٹا، ابھی مت آنا، ابھی بیٹھو، ہم لینے ہی کے لیے کھڑا ہوئے ہیں. ابھی بیٹھو انشاءاللہ، ہم جب بلائیں گے تب آ جانا. وہ شعر سماعت فرمائیے انشاءاللہ، بڑا اچھا شعر ہے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی، درگزر کر دے. خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی، درگزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی، درگزر کر دے. کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے. بنا لے اپنا تو بندہ الہی، درگزر کر دے. بنا لے اپنا تو بندہ الہی، درگزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی، درگزر کر دے. گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی، درگزر کر دے. ذرا آمین بولے دیں الحمدللہ. دیکھیے میں ابھی ٹائم کتنا ہوا ہے، مجھے دعوت ملی تھی 28 فروری کی، 28 فروری کی دعوت ملی تھی، اور تقریر کرنے کھڑے ہوئے ہم 1 مارچ کو. 1 مارچ آشین الحمدللہ. ہمیں بیٹھ جاؤ الحمدللہ، ادھر ذہن حاضر کرو الحمدللہ. جو نوجوان اگر وہ کچھ بول رہے ہیں انشاءاللہ ادھر نہ جائیں، ادھر آ جائے بھائی. ذرا ایک مرتبہ نعرہ لگا دیے شیطان آ گیا ہے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. مولانا سہراب کلکتوی، مولانا سہراب کلکتوی، مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ. ماشاءاللہ بہت اچھا بھائی ذہن کو حاضر کریں. کچھ بچے ہیں آپس میں کچھ ہو گیا ہوگا، اب لوگ ادھر دیکھیں ادھر ذہن نہ کریں الحمدللہ. بڑا اچھا مجمع ہے. میں چائے والے سے گزارش کروں گا کہ بیٹے خدا کے واسطے تھوڑی دیر کے لیے تم یہ مجلس سے نکل جاؤ الحمدللہ ثم الحمدللہ. بڑا اچھا جلسہ ہو رہا ہے، بڑے اچھے انداز میں آپ جلسہ سن رہے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے آنے کو، اللہ آپ کے بیٹھنے کو، اللہ آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. بھائی آپ بیٹھ جائیں، جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں الحمدللہ. جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں. جتنے منتظمین ہیں اراکین جلسہ ہیں ان سے میری گزارش ہے، کچھ بچے الجھ گئے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں کہ شانت کروا دیں، ان کو خاموش کروا دیں. یہ آپ کا جلسہ بہت اچھا جلسہ ہو رہا ہے، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آمین بولے الحمدللہ. دعوت ملی تھی 28 فروری کی، تقریر کرنے کھڑا ہوا 1 مارچ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ. کیا نقیب جلسہ ہے حضرت مفتی انتخاب صاحب، بہت اچھی بات ہے. اب میری مرضی ہے
कि हम जिस भाषा में तकरीर करें আমি ফয়সলা করেছি कि आज বাংলাতে ही বক্তব্য করব আপনারা के सुनते हो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानता हूँ पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, चाहे बांग्ला में भाषा में तकरीर करो, चाहे भोजपुरी भाषा में तकरीर करो, चाहे उर्दू भाषा में तकरीर करो, जिस भाषा में भी तकरीर करो, ये सब के सब समझने वाले हैं, सब के सब सुनने वाले हैं। बेशक बेशक कबूलियत की घड़ी है, कबूलियत की घड़ी है। ये रात 12 बज गए, कबूलियत का वक्त शुरू हो गया, कबूलियत का वक्त शुरू हो गया है। और सुनिए अल्हम्दुलिल्लाह, इस मजलिस में जो दुआ होगी इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होगी, वो दुआ मकबूल होगी। मैं ऐसे नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कहता है उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। मेरा अल्लाह कहता है उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी पुकार सुनता हूँ, मैं तुम मुझे याद करो तुम मुझे पुकारो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। पहली वजह एक तो कबूलियत की घड़ी है, इस वक्त दुआ कबूल होगी। दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह मैं आपको बता दूं, दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह बता दूं। हदीसों के अंदर में आता है कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान होता है, जिस मजलिस में 40 मुसलमान होता है, उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बताइए कितने मुसलमान बैठे हैं, हजारों मुसलमान बैठे हैं, कितने अल्लाह के वली यहाँ पर होंगे, कितने अल्लाह के दोस्त यहाँ पर होंगे। हम नहीं जानते वो अल्लाह का दोस्त है, वो तो अल्लाह ही जानता है उनकी निगाह में कौन महबूब है कौन क्या। दूसरी वजह मैंने आपको बता दी दुआ की कबूलियत की इंशाअल्लाह, कि जिस मजलिस में अल्लाह का वली दुआ करे आमीन कहे वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी। अच्छा दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैं आपको बता दूं, हदीसों के अंदर में आता है कि जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई, जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई, जिनके बाल सफेद हो गए, जब वो दुआ के लिए हाथ फैलाता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। ऐसा कि हमारे कितने बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, जिनकी दाढ़ी सफेद है, जिनके बाल सफेद हैं, कुर्बान जाओ। और दुआ की कबूलियत की चौथी वजह मैं आपको बता दूं, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है, रात 12 बज गए, इनकी आंखों में नींद नहीं है, ये गुनाहों को नहीं जानता है, ये जन्नती बच्चा है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। ये जन्नती बच्चा है, ये मासूम है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं बच्चा चाहे किसी का हो, यहूदी का हो, नसरानी का हो, काफिर का हो, मुसलमान का हो, अगर वो बच्चा है वो बच्चा जन्नती है। बताइए जन्नती बच्चा दुआ करेगा आमीन कहेगा, अल्लाह उस दुआ को कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। बेशक। और पांचवी वजह दुआ की कबूलियत की मैं आपको बता दूं, ये हमारे उलमा किराम बैठे हैं, आलिमे दीन बैठे हैं, अंबिया के वारिस बैठे हैं, अंबिया के वारिस बैठे हैं, हुफ्फाज़े किराम बैठे हैं। बताइए जो मेहमान रसूल हो, जो आलिमे दीन हो, जो अंबिया के वारिस हो, इंशाअल्लाह वो दुआ करेंगे तो अल्लाह उस दुआ को कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। দেখানে যেটা দোয়া হবে ইনশাআল্লাহ ভালো দোয়া হবে। আপনারা দোয়া করে যাবেন ইনশাআল্লাহ, এখান থেকে দোয়া করে যাবেন अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जो दुआ होगी वो मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, उसको रहम आ गया, नजर वो मोटरसाइकिल रोका, बहुत तेजी के साथ गया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठे दादी उठे दादी, चोट लग लू नहीं की चोट लग लू, उठे उठे। बुढ़िया उठी, बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी ते हमरा उठे लेने में दुआ करी अल्लाह उतना जल्दी तुरंत उठा लो। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। एक आदमी घर पे नमाज पढ़ा, घर में नमाज पढ़ा और नमाज पढ़ के दुआ करने लगा, ए अल्लाह हमारा लखपति बना दा, लखपति बना दा, लखपति बना दा। बीवी सुन ली, बीवी आई मार के एक ठुन को की मांगे जा लखपति बने, बोले नहीं लखपति तो हमारा चिक्के छी, ये दुआ कर अल्लाह हमारा करोड़पति बना दा, हमरा करोड़पति बना दा, हमरा करोड़पति बना दा। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है
मालूम नहीं इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। मौजू बदल जाएगा। मौजूद सामईन किराम, मेरे नौजवान बच्चों, अल्लाह अकबर कबीरा, मौत पीछे खड़ी है, कब अल्लाह का बुलावा आ जाएगा, इस दुनिया को अलविदा कह देना होगा। इसलिए मेरे नौजवानों, इतना बड़ा मजमा है, अल्लाह अकबर कबीरा, आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, आज हमारी मस्जिदें खाली रह जाती है। अजान के वक्त तुम मोबाइल पर क्या कहते हैं, उंगलियों को चलाते रहते हो। अल्लाह अकबर, थोड़ा सा भी खौफ तुम्हें नहीं होता कि अब अजान हो रही है, थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को रोक दो, अपने हाथों को रोक दो, उस वक्त भी तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं होता है। हमारे नौजवानों को रात में नींद नहीं है, नौजवानों को रात में नींद नहीं है। क्यों नींद नहीं है? मोबाइल उसे सोने नहीं दे रहा है, मोबाइल उसे सोने नहीं दे रहा है, फेसबुक उसे सोने नहीं दे रही है, ये जो व्हाट्सएप है ये सोने नहीं दे रहा है। कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या तुमने कभी रात के वक्त उठकर 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ी है? तहज्जुद की नमाज तुमने पढ़ी? कुर्बान जाओ। अरे वो लड़का था, रोमानिया का लड़का, अमेरिका आया, अमेरिका से जा रहा था, तो एयर होस्टेस से पूछा कि मेरा नमाज का टाइम हो जाएगा तो फ्लाइट के अंदर में मैं नमाज पढ़ सकता हूँ? इंजीनियरिंग कर रहा था वो लड़का। और कुर्बान जाओ, एयर होस्टेस ने, अंग्रेजी एयर होस्टेस ने कही नहीं, नमाज फ्लाइट में, जहाज में नमाज पढ़ने का अलाउ नहीं है, नमाज पढ़ने का अलाउ नहीं है जहाज में। कुर्बान जाओ, उस नौजवान ने कहा कि जिस फ्लाइट में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, उस फ्लाइट पे मैं सफर नहीं करूंगा। टिकट को उन्होंने कैंसिल किया, दूसरे फ्लाइट पकड़ कर क्या कहते हैं अपना देश गया। ये ईमान है। मेरे बच्चों, तुम कहां हो? तुम कहां हो? ये व्हाट्सएप मोबाइल काम आएंगे, ये व्हाट्सएप मोबाइल काम आएगा, ये व्हाट्सएप मोबाइल काम आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारे बच्चों को, नौजवानों को नमाजों की फिक्र नहीं है। हमारे दीन के दाई लोग, वो जमाती भाई लोग, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे बुजुर्ग लोग गली गली घूमते हैं, जाकर लोगों को दावत देते हैं, लेकिन कितने लोग, कितने नौजवानों तुमने नमाजों को अपनी जिंदगी में शामिल किया है? ऐ मेरे बच्चों सुनो, जिस जिंदगी में नमाज जैसा अमल ना हो, वो जिंदगी फिर बेकार है। वो जिंदगी कोई जिंदगी है जिस जिंदगी में अमल, नमाज जैसा अमल ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक वादा करो, आज तक नमाजों से दूर थे, ठीक है, ठीक, गफलत में थे, शैतान बहका दिया था। मेरे बच्चों, सुबह का भूला घर आए, उसे भूला नहीं कहते हैं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह का तौबा का दरवाजा खुला है। मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह एक अहद करो कि इंशाअल्लाह गफलत हुई है, मुझसे गलती हुई है, भूल हुई है, इंशाअल्लाह अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है, अल्लाह माफ कर देगा इंशाअल्लाह। एक वादा करो कि आज की सुबह की फजर की नमाज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार? जरा हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सब तैयार है माशाअल्लाह। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। नमाज क्या मांगती है? नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो कहती है तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, हम तुम्हारी जिंदगी को बदल देंगे। तुम मुझसे मोहब्बत करो। नमाज कहती है तुम मुझसे मोहब्बत करो, हम तुम्हारे दिलों के अंदर में, हम तो तमाम लोगों के दिलों के अंदर में हम तुम्हारी मोहब्बत को बसा देंगे। नमाज ये पैगाम देती है, तुम हमें अपना कर देखो, रिस्क का दरवाजा अल्लाह तुम्हारे लिए खोल देगा। और कुर्बान जाओ, एक सहाबी रसूल थे, रोटी रोजी का मसला आ गया, मजदूरी करने जाते थे, मजदूरी नहीं मिलती थी, घूमकर शाम तक चले आते थे। 3 दिन हो गया चूल्हा नहीं जला, 3 दिन हो गया चूल्हा नहीं जला। कुर्बान जाओ, बीवी कहती है चौथी रोज, ए मेरे सरताज, ए मेरे प्यारे शौहर, आप भूख बर्दाश्त कर लेंगे, मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन ये छोटा छोटा मासूम बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला, 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। ऐसा करो, आज कुछ तो इंतजाम करो, किसी से कर्ज ही सही। तो शौहर ने कहा कि कितने लोगों से कर्ज लूं?
मेरी बीवी कितने लोगों से कर्ज लूं, लोग कर्ज देना भी बंद कर दिया, लेकिन कुर्बान जाओ वो शौहर कहता है ईमान देखो, वो कहता है मेरी बीवी गम ना कर, वो सबसे बड़ा रज़ाक है।